I'm Dr. Anubha Gupta from Illuminate Minds. Today we will be talking about the prepositions of movement. If you remember, in my previous session on prepositions of movement, which was an explanatory session, I have already spoken about the rules pertaining to all the prepositions of movement that have been mentioned here in this picture. Today, without wasting any time, we will be directly moving to the questions. So I am going to discuss with you all some of the most confusing areas related to prepositions of movement. Let's talk about the difference between along and across whenever we are talking about the prepositions of movement, because we know that both of these are the prepositions of movement and students may face a lot of confusion when they have to use along and across. So again, I would request you to just pause this video for some time and try to do these questions yourself so that we can discuss them one by one. Okay, let's discuss. I will just show you the right answers now and then we'll explain each of these statements one by one. Now students, if you see in the first statement, Rakesh and Madhu walked along the beach. If you remember, we have already talked about across and along. Let me come back to it again. Whenever we are talking about along means a movement in a linear direction or in a particular direction, जिसको आप हिंदी में फ्रेंड्स बोल सकते हैं साथ में. तो एक लाइन में अगर कोई चल रहा है, कोई भाग रहा है, कोई भी मूवमेंट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे along. And when we want to talk about a movement from one side of something to the other side, we can refer to across. यानी कि हिंदी में आप across को क्या बोल सकते हो? आर पार. तो आप एक जगह से, एक एंड से दूसरी जगह या दूसरे एंड पे अगर जा रहे हो तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? across. ठीक है. So normally whenever we are talking about any kind of movement which is along the line like roads, paths, lanes or river side, we will have to use the preposition along. So यहाँ पर भी बीच के किनारे वो दोनों वॉक कर रहे हैं तो क्या preposition आएगा? along. Similarly in the second statement, the movement is along the road. तो मूवमेंट जो है रोड के किनारे किनारे है तो कौन सा preposition आएगा? along. Similarly, अगर आप थर्ड वाले में देखो, little boy ran across the road ignoring his mother's warning. So whenever we are talking about across as a preposition of movement, what we intend to say is that it implies the movement from one end or other, one end or side to the other end or side, but there is some gap or obstruction or any kind of hurdle in the middle. यानी कि आपको एक एंड से दूसरे एंड पे जाना पड़ रहा है तो बीच में चाहे वो गैप होगा, चाहे किसी तरह की रुकावट होगी, वो क्रॉस करके आपको जाना है. तो थर्ड वाले में क्या है? लिटिल बॉय रैन अक्रॉस द रोड, क्योंकि आगे क्या दिया हुआ? इग्नोरिंग हिज मदर्स वार्निंग. तो ऑब्वियसली वो रोड को क्रॉस करके जा रहा है. दैट इज वाई वी विल बी यूजिंग द preposition across. नेक्स्ट इज, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पॉन्ड, तो पॉन्ड में वो एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस करना चाहता है. सो ऑब्वियसली वी विल हैव टू यूज द preposition across. नाउ फिफ्थ की अगर हम बात करें, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द नाउन कॉरिडोर हेयर. कॉरिडोर एज वी नो एक गलियारा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो कॉरिडोर है. कॉरिडोर के अलोंग वो मूवमेंट उसका हो रहा है, बिकॉज हम रूम्स जैसे हम देखते हैं कोई भी कॉरिडोर है उसमें लाइन से एडजेसेंट होते हैं, रूम्स अगल बगल होते हैं, राइट. सो आई वॉक्ड अलोंग द कॉरिडोर. It nearly took him 1 hour to swim across the river. Again यहाँ पर आप across use करोगे because you want to go from one end of the river to the other end. Next we are talking about the huge trees
along the road, because again I have told you before, along preposition हम तब यूज करते हैं जब हम किसी रोड की, पाथ की और लीनियर पाथ की बात कर रहे होते हैं, यानी कि एक लाइन में जो चीज है. तो यहाँ पर सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूज ट्रीज विच आर ऑन अ साइड ऑफ द रोड, सो वी विल यूज द preposition along. अगेन 8th में आपको दिया है कि वी वॉक्ड प्लैंक द ब्रिज, तो अक्रॉस यहाँ पर फिल किया है. क्यों अक्रॉस? क्योंकि आगे वाले सेंटेंस में क्या दिया है, रीच्ड द अदर साइड ऑफ द रिवर. सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट मूविंग फ्रॉम वन पर्टिकुलर प्लेस और द एंड टू द अदर प्लेस और द अदर एंड, वी विल हैव टू यूज अक्रॉस, क्योंकि अक्रॉस का फ्रेंड्स मतलब होता है, बार बार मैं बोलूंगी, हिंदी में मतलब होता है आर पार. 9th में भी हम क्योंकि रिवर को क्रॉस करने की बात कर रहे हैं, ओल्ड मैन ड्राउंड अटेम्प्टिंग टू स्विम अक्रॉस द रिवर, तो जो बूढ़ा आदमी था वो डूब गया बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू क्रॉस, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, हेंस ही ड्राउंड. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, the next confusing area in the prepositions of movement are across and over. So as we have already spoken about across in the earlier slide, let me talk about the preposition over now. Over is also used to mean from one side or end to the other side or end. तो जैसे कि आपने देखा, अक्रॉस में भी हम एक साइड से दूसरी साइड की बात करते हैं, ओवर में भी हम एक साइड से दूसरी साइड की बात करते हैं. बट ओवर का मतलब क्या होता है, किसी चीज के ऊपर से. अक्रॉस जो है वो आपका आप इस तरह से कह सकते हो कि उसके एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हो. जरूरी नहीं है कि ऊपर से ही जाएंगे, बट अगर आपको याद हो तो इन द prepositions ऑफ प्लेस ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट above and over. So there it was taken as a preposition of place, but here whenever we are talking about prepositions of movement, over is also the preposition of movement because it means that we are moving from one end to the other end, and थोड़ा सा ऊपर से अगर हम जा रहे हैं तो हम ओवर का यूज करते हैं. सो लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स नाउ. नाउ इफ यू कैन सी इन द फर्स्ट वन, डॉग विल जंप ओवर द वॉल टू ईट द. डॉग जो है वॉल के ऊपर से जंप करेगा और बोन को खाएगा. सिमिलरली एयरक्राफ्ट फ्लू लो ओवर द लेक, तो क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है वो उड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो थोड़ा ऊपर है, तो हम क्या बताएंगे, ओवर. अब यहाँ पर देखिए थर्ड वाले में क्या है, हाउ आर वी गोइंग टू गेट अक्रॉस द रिवर, बिकॉज वी वॉन्ट टू गो फ्रॉम वन एंड ऑफ द रिवर टू द अदर एंड, यानी कि हम उस रिवर के आर पार जाना चाहते हैं, बट वी डोंट नो द मोड, हम नहीं जानते कि हम किस तरह से जाएंगे. सो ऑब्वियसली वी हैव टू यूज द preposition across. Fourth one, it's showing it's the first time I have flown over or across the ocean. Now why over? Because he is talking about flying, तो ऊपर से जा रहे हैं तो over, और एक तरफ से दूसरी तरफ जाना चाहते हैं तो across. तो both are correct in this particular case. Next is sorry, just delete this A. I put my hand over her mouth to make her quiet. तो यहाँ पर हाथ मैंने रख दिया उसके मुंह पे उसको चुप कराने के लिए, तो यहाँ पर ऊपर है. यहाँ अक्रॉस तो कहीं से नहीं यूज कर सकते क्योंकि अक्रॉस का मतलब होता है फ्रेंड्स आर पार जाना, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हम ओवर का यूज करेंगे. सिमिलरली शी लेड अ वाइट टेबल क्लॉथ ओवर द टेबल, तो उसने टेबल पे टेबल क्लॉथ बिछा दिया, तो दैट इज ऑल्सो ओवर. अक्रॉस नहीं यूज कर सकते. देयर वॉज अ बैरियर अक्रॉस द रोड, तो रोड के उस पार एक बैरियर है तो अक्रॉस यूज करेंगे. एंड 8th में क्या होगा, द कंपनीज लेइंग मोबाइल केबल्स अक्रॉस द सिटी, बिकॉज वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट movement over say movement in a particular area, but that area is large. बड़े एरिया में मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम अक्रॉस का ही यूज करते हैं, ओवर का नहीं. क्लियर? So moving to the next one now. Now the next is about the difference between across and through. Across का हमने already देख लिया मतलब. Now let's talk about the word through.
ये एक preposition है which again means to move from one side to the other, but for something having a covering around. फिर से मैं बोलूंगी कि इसमें भी we are moving from one place to the other place और one end to the other end, but जो movement है वो किसी ऐसी चीज में से होगा जिसके ऊपर कुछ कवर है. तो जैसे कि डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल, टनल, सुरंग, होल और अ पाइप ऑल्सो. तो यहाँ पर जो मूवमेंट है दैट विल बी फ्रॉम अ 3-dimensional स्पेस, unlike in across where the movement is only in a 2-dimensional space. तो 2-dimensional स्पेस क्या मतलब हो गया, जैसे कि डेजर्ट हो गया या रिवर हो गया, कोई भी तरीके का फील्ड हो गया, तो वो क्या है आपका 2-dimensional स्पेस है. बट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ टनल और से अ डोर इज अगेन अ 3-dimensional स्पेस, then a forest or something, we have to use the preposition through. But whenever we want to talk about the nouns like park, stadium, ground, वहां पर हम दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि across या through का. So let's talk about the sentences which are given here. In the first case you can see we moved there through the forest. So as I have already shared कि forest है, या second में आप देखिए तो tunnel है. इन दोनों में हम किसी इनक्लोज्ड स्पेस के अंदर से जाने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम थ्रू यूज करेंगे. चिल्ड्रन आर प्लेइंग अक्रॉस या थ्रू द पार्क. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट पार्क हो, गार्डन हो, स्टेडियम हो, ग्राउंड हो, वहां पर हम दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं. वही चीज आपको 4th वाले में भी दी हुई है. Now when we are talking about underwater tunnel in the 5th one, we will have to use only through, because again we are talking about something which is covered. Similar is the case in the last one. They slowly walked through the green forests. So I hope this much is clear. Now let's talk about the next one, which is the difference between into and through. Whenever we are talking about into, it refers to the movement from the outside of something to the inside of a 3-dimensional space. इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आप कोई भी ऐसी 3-dimensional space के अंदर जा रहे हो. कहाँ से जा रहे हो? बाहर से जा रहे हो. थ्रू का मतलब क्या था? 3-dimensional space में एक एंड से घुस कर हम दूसरे एंड से बाहर निकल रहे हैं. बट यहाँ पर क्या मतलब है कि हम जो है बाहर से किसी 3-dimensional चीज के अंदर जा रहे हैं, या कोई चीज उसमें डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं. तो दैट इज हाउ वी विल यूज इनटू. बिकॉज इनटू का हिंदी में मतलब होता है के अंदर या में, और थ्रू का मतलब क्या होता है? उसमें से. तो थ्रू में और इनटू में बेसिक डिफरेंस क्या हो गया? थ्रू मीन्स going in and coming out also, but into will only be going in from outside, right? So let's have a look at the sentences now. As the first sentence is, I couldn't get my new bed through the door. So I have already told you that through is used when we are talking about going from one end to the other end, from a like through a 3-dimensional space. So 3-dimensional space के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए what we'll use through. Now look at the second one. Sanya got into the back of the car. Car we already know is a 3-dimensional object. So कार में अगर हम बाहर से अंदर घुस रहे हैं तो क्या बोलेंगे? into. Mother reached into her bag and found the keys. So उन्होंने बैग में, बैग इज ऑल्सो अ 3-dimensional ऑब्जेक्ट. सो उसमें घुस कर उन्होंने अपनी कीज, अपना हाथ डालकर कीज को निकाल लिया. वी ड्रोव थ्रू सम स्पेक्टेक्युलर कंट्री साइड. तो कुछ स्पेक्टेक्युलर एरिया में से हम निकल के गए. और ड्रोव थ्रू मीन्स कार चलाते हुए गए. जैसे कि आप बोलते हो मैकडी वगैरह में ड्राइव थ्रू होता है, KFC हो गया, इन सब में ड्राइव थ्रू होता है. तो ड्राइव थ्रू का मतलब क्या है कि आप एक एंड से घुसते हो कार लेके, ऑर्डर प्लेस करते हो, सामान लेते हो, एंड देन यू कम आउट. सो दैट इज द यूसेज ऑफ थ्रू. अगेन कैनल फ्लोज थ्रू द सिटी सेंटर. क्लियर?
we won't be able to see the stars unless you look through the telescope. टेलीस्कोप में से नहीं देखोगे तो आपको कोई भी स्टार नहीं दिखेगा. देन इनटू, अब आप देखिए 7th और 8th में अगर हम देखें तो यहाँ पर इनटू इज यूज्ड इन स्लाइटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज हियर वी आर यूजिंग इनटू टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ द मूवमेंट विच रिजल्ट इनटू हिटिंग समथिंग. तो यहाँ पर जैसे आप 8th को देखो, पहले शी क्रैश्ड इनटू द फेंस, तो फेंस में जाकर वो लड़ गई, घुस गई. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हिटिंग समथिंग, किसी चीज को हम हिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इनटू का यूज करेंगे. सिमिलरली ही लुक्ड स्ट्रेट इनटू हर आईज, बिकॉज वहां पर जाके नजर जो है नजर से टकराई जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर भी वी विल यूज द preposition into. I hope it's clear. Okay. Next area is the to versus toward. तो ठीक है, तो अगर आप देखिए तो यहाँ पर पहला वाला जैसे स्टेटमेंट है, आई एम ट्रैवलिंग टू द US टुमारो, तो टू का तो हमें क्लियर है, क्योंकि टू हम कब यूज करते हैं फ्रेंड्स? टू we use as a preposition of movement when we want to talk about moving to a particular destination. Clear? But whenever we want to talk about movement toward movement in a particular direction, we use towards. तो जब हम to का यूज करेंगे तो हमारा पर्पस क्या होगा? एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की तरफ जाना, एक पर्टिकुलर जगह पर जाना. बट हम जब टूवर्ड्स का यूज करेंगे तो हमारा जो फोकस है, हमारा जो व्यू पॉइंट है, दैट इज टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो डेस्टिनेशन है और डायरेक्शन है. सिमिलरली यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस हैं, आई नीड टू गो टू द टेलर, कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, आई एम गोइंग टू द पार्टी. इवेंट्स के लिए भी हम यूज करते हैं, प्लेसेस के लिए भी यूज करते हैं और डेस्टिनेशन के लिए भी यूज करते हैं. तो टू का अगर जो पार्टी वाला स्टेटमेंट है, ये एक पर्टिकुलर इवेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम टू का यूज करेंगे. बट इफ यू लुक एट 7th, 8th, 9th एंड 10th, यहाँ पर आप देखिए शी वॉज कैरिंग अ सूटकेस एंड वॉकिंग टूवर्ड्स हिम. सो ही माइट बी स्टैंडिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड शी इज वॉकिंग टूवर्ड्स हिम. नेक्स्ट इज ही किक द बॉल टूवर्ड्स अ गोल. तो जो गोल है, जो गोल पोस्ट होती है, वो दैट इज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक जगह पर है, वो एक डायरेक्शन में है, तो उन्होंने जो बॉल है वो उस तरफ ही हिट की. ही पॉइंटेड टुवर्ड्स द विंडो टू शो द लिजर्ड. एवरीवन सिटिंग एट द टेबल टर्न्ड टुवर्ड्स मी. मेरी तरफ सब घूम गए, तो मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैठी हूँ, मेरी तरफ सब लोग घूम गए. सो अब व्हाट आई विल यूज हियर? टुवर्ड्स. मूविंग फॉरवर्ड, we can talk about across and around. Now if you can see across, I have already spoken about many a times, but यहाँ पर अगर आप इसको differentiate करना चाहो with around, so as we know that across means on the other side of a lane or road or river, एक जगह से दूसरी जगह. but around का मतलब क्या होता है? on every side or in every direction. जैसे कि इधर भी, उधर भी, वहां भी, यहाँ भी, आप बोलते हो ना हर तरफ. तो थ्रू आउट, whenever we want to say throughout, we can say around. So first and second, I hope they are very very similar to what we have already discussed. Let's look at the fourth one, because यहाँ पर क्या है? walk slow children around. ठीक है, स्कूल्स के आगे आपको वार्निंग सी लिखी होती है, ड्राइव स्लो चिल्ड्रन अराउंड. और इस तरह से कुछ मार्केट प्लेसेस पे भी देर आर सम ऑफ द वार्निंग बोर्ड्स विच यू मे सी. सो यहाँ पर अराउंड का मतलब है कि द पीपल, द चिल्ड्रन आर एवरीवेयर. इधर भी हैं, उधर भी हैं, आमने भी है, सामने भी है, बगल में भी है, इस साइड भी है, उस साइड भी है. सो दैट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग द preposition around. Around is one such preposition which can also be used when we want to talk about something that is not far away or something which is approximate. तो जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? His residence is around the office building. तो जो उसका residence है वो office building के पास है. And similarly, I will be back around 6 p.m. That means कि approximately he is not sure that when he is about to be back. तो approximate जब timing की वो बात कर रहे हैं, so that is around. Okay.
Next, we can talk about on versus onto. On, we already know that whenever we are talking about a fixed situation, जहाँ पे जैसे हम अगर preposition of place की भी बात करें तो भी हमने देखा on की बात होती है. लेकिन मूवमेंट के केस में भी जब हम फिक्स सिचुएशंस की बात करें जिनमें बहुत ही लाइट सा मूवमेंट हो या ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो, सो दैट in those cases we use on. But whenever we want to talk about something that has a strong feeling of movement, कि बहुत ज़्यादा strongly हमको फील हो रहा है कि वो चीज़ मूव कर रही है, वहाँ पर हम on to का यूज़ करेंगे. लेकिन इसमें भी क्या है कि whenever we want to talk about something that has moved itself, ठीक है, अपने आप से कोई चीज मूव कर रही है, तो वी कैन यूज बोथ द prepositions on and onto. But when we want to talk about something which has moved from one place to other place by somebody, किसी की हेल्प से, किसी के सपोर्ट से अगर ऐसा हुआ है, तो we have to use the preposition onto. Let's discuss. Your keys are on the table, so fixed position की बात है, so basically इसको preposition of place की तरह भी आप यूज कर सकते हो. Men were standing on the roof, but यहाँ पर आप देखिए थर्ड में क्या है, the cat climbed blank the roof. तो यहाँ पर मैंने on या on to दोनों दिए हैं, because as I have already shared, whenever something is moving on इट्स ओन, अपने आप से कोई चीज मूव हो रही है, तो वहां पर हमको क्या यूज करना है, ऑन भी हम यूज कर सकते हैं, ऑन टू भी यूज कर सकते हैं. बट इफ समबडी इज ट्राइंग और मेकिंग एन एफर्ट टू मूव समथिंग, देन वी हैव टू यूज ऑन टू. सो शी एम्प्टीड द सूटकेस फुल ऑफ क्लोथ्स, उसने गिराए, ठीक है, उसने खाली किया सूटकेस फुल ऑफ क्लोथ्स ऑन टू द फ्लोर. सो हियर वी विल हैव टू यूज द preposition ऑन टू, नॉट ऑन. Similarly, there is a battery pack with the camera that you can clip onto your belt. ठीक है, तो यहाँ पर भी क्योंकि तुम ऐसा कर सकते हो, तो जहाँ पे कर सकने की बात है वहां पर आप क्या यूज करोगे, ऑन टू. और यहाँ पर यू कैन सेव द डेटा ऑन और ऑन टू योर हार्ड डिस्क, कि आपका जो डेटा है वो आप इस पे सेव कर. मूव ऑन टू मिसलेनियस एक्सरसाइज बेस्ड अपॉन द prepositions of movement. Now here you can see these 7 blanks are given, and the choices are also given on the top. So what you can do is you can just quickly fill these blanks with these choices so that we can discuss them. Okay, let's discuss. As it's there, I moved to Germany in 1998. So as I have already shared with you that whenever we want to talk about a particular destination, we have to use the preposition to. To is also used for moving to a particular place or a particular event. So here we are talking about a destination which is Germany. We will have to use to. Second is train went through the dark tunnel, because tunnel again is an enclosed space. So मैंने बताया था कि कोई भी चीज जिसपे कि 3-dimensional space हो, जहाँ पे covering हो, we will have to use the preposition through. She sailed along the river. यहाँ पर across भी हो सकता है क्योंकि वो एक तरफ से दूसरी तरफ river के जा रही है, but यहाँ पे since across is not amongst the choices, so we will have to use along, which means कि वो river में जा रही है, river के किनारे किनारे से, या जैसे भी she is sailing, boat में जा रही है. He is going into the room. So from outside, if somebody is moving to a 3-dimensional space, we will have to use the preposition into. So he is going into the room. They walked over the bridge. ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं. ओवर इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द मूवमेंट, ऊपर से जो हो रहा हो, ठीक है. सो यहाँ पर सिंस अगेन अक्रॉस इज नॉट गिवन, अदरवाइज वी वुड हैव यूज्ड अक्रॉस ऑल्सो हियर. सो दे वॉक्ड ओवर द ब्रिज. माउंटेन है तो माउंटेन डाउन, ही रैन डाउन. अप एंड डाउन इज, दे आर ऑल्सो prepositions ऑफ मूवमेंट, बट आई हैव नॉट डिस्कस्ड देम अर्लियर बिकॉज दे आर वेरी इजी. ऊपर जाना इज अपवर्ड्स और अप, और नीचे आना इज
डाउनवर्ड्स और डाउन. सो यहाँ पर ही इज कमिंग डाउन द माउंटेन, ही रैन डाउन द माउंटेन, वो माउंटेन से दौड़कर नीचे आ रहा है या आ गया. द कार केम आउट ऑफ द गराज. आउट ऑफ का मतलब भी बहुत इजी है. आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, कहीं से बाहर निकलना. इनटू का मतलब होता है जाना, और आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, बाहर आना. सो द कार केम आउट ऑफ द garage. So friends, today we have the most confusing areas which we come across whenever we talk about the prepositions of movement. I hope that this session would have been useful for you all. So stay tuned for the next session on prepositions. Till then, bye bye. Thank you.